Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. I have just one learning objective for today's discussion for you, and that is to understand how teachers use Bloom's cognitive domain in their instruction and in their assessment. So whatever the material I have taken is from the reference that is given below. What you can do, you can go over there, click it out, and get the reference from the internet. Otherwise, I will going to put this reference in the Google Classroom as well. Before going ahead, it is good to get a review and a recap what we have done in the last discussion. So in the last discussion, we discussed about Bloom's taxonomy, that Bloom taxonomy has three domains, that is cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. For the time being, what we are discussing is the cognitive domain. So what do we mean by the cognition is thinking skills, any kind of intellectual thinking skills that require reasoning, and ultimately on the basis of thinking and reasoning, we come to the decision making. So according to Bloom taxonomy, cognitive domain has 6 different levels. The lower level is knowledge level, the better level than the knowledge one is comprehension, then the other better level is application. The higher order thinking skill levels are analysis, then synthesis, and the most at the top higher order thinking skill level is evaluation. So once we are talking about evaluation, we are saying that thinking a skill that require evaluation, it is the most demanding skills. It requires more effort and more time. So once we have gone through all of this thing and we come to know about it, that Bloom's cognitive domain have these 6 levels and how teachers are going to use them in their instruction and assessment. That is one of the most important questions that we will going to discuss over here. So to discuss that how teacher can use Bloom taxonomy while planning their lesson plan, first of all, whenever teacher develop their lesson plan that is on the daily basis, they always use Bloom taxonomy. Why? To find out the verbs from the Bloom taxonomy and develop their student learning outcome. What are student learning outcomes? Student learning outcome are the outcome that teacher need to achieve in that specific class. So that is a one way they use Bloom taxonomy and their action verb. If they wanna teach a knowledge level components to the student and they want to assess the knowledge level of student about that concept, what do? They go and take out the knowledge level verbs and develop their question on that. Over here, we will going to discuss that if teacher wanna develop a mastery level learning in which they want a student to develop all learning skill in that specific concept, this is known as mastery learning. And how can they do it? Let's discuss over here. तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और टीचर का यहाँ पे जो की गोल है वो ये है कि स्टूडेंट को वो चाहता है कि वो इस कॉन्सेप्ट में नॉलेज लेवल की थिंकिंग स्किल भी डेवलप करे, कॉम्प्रिहेंशन लेवल की भी, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इसको यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, और एवेलुएशन लेवल की भी स्किल्स डेवलप करें. सो दिस इज नॉन एज मास्टरी लर्निंग कि हम एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल लेवल तक सीखने की कोशिश करते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं. So here we have an example of a poem. लिटरेचर का टीचर है, वो स्टूडेंट को पोएम पढ़ाना चाहता है, तो वो मास्टरी लर्निंग के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहले मास्टरी लर्निंग के लिए वो नॉलेज लेवल की थिंकिंग स्टूडेंट में डेवलप कर सकता है, और उसके लिए जब वो क्वेश्चंस बनाएगा तो वो क्वेश्चन कैसे दिखेंगे और लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैसे दिखेंगे. सो स्टूडेंट हैव रीड पोएम एंड कैन रिमेंबर सम और ऑल ऑफ द लाइन्स. जब स्टूडेंट्स ये लेवल अचीव कर लेंगे कि वो पोएम को रीड आउट कर लेंगे, उनको पोएम का पता चल जाएगा, उनको पोएम्स के कुछ लिरिक्स और कुछ स्टेंसा याद हो जाएंगे या पूरी पोएम याद हो जाएगी, तो वो उस पोएम के ही साथ स्टूडेंट को नॉलेज लेवल से लेके कॉम्प्रीहेंशन के लेवल तक लेके जाएगा. और वहाँ पे स्टूडेंट क्या करने लगेंगे? हाउ टीचर कम टू नो कि स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन लेवल तक पहुँच गए. स्टूडेंट वुड गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स that will going to be used in the poem and the overall meaning in the poem. जब स्टूडेंट्स को उसमें मल्टीपल वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएंगे, वो वर्ड्स कैसे इस्तेमाल हुए, क्यों इस्तेमाल हुए, उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा,
और उन्हें पोएम का थीम पता चल जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्टूडेंट अब पोएम को कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पे अंडरस्टैंड करने लग गए हैं और अब उससे कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को कॉम्प्रीहेंशन से एप्लीकेशन के लेवल पे ले जाए। सो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? स्टूडेंट कैन मेक पॉइंट्स or demonstrate an ideas using direct example from the poem. Then if teacher is willing कि आप स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन से एनालिसिस के लेवल पे लेके जाया जाए, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी और फिर वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा विद द सेम पोएम। तो आफ्टर the knowledge comprehension application, a student will be able to explain how poet uses structural and linguistic techniques to achieve effects. So ये सवाल उसी पोएम का है, पर इस सवाल का जवाब देने के लिए जो रिक्वायर्ड है थिंकिंग स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल, वो स्किल्स स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होंगी एनालिसिस लेवल की। दैन टीचर उसी पोएम के साथ स्टूडेंट को और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ लेके जाएगा। That is over here written create, and let's say it is synthesis. Then a student will going to write down an additional stanza in keeping with poet's style. तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो उस पोएम को पढ़ेंगे, उस पोएम में एक और स्टैंजा ऐड ऑन करेंगे, उसकी तमाम स्टाइल, स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक टेक्निक्स को सामने रखते हुए, उसमें यूज़ होने वाली वोकैबुलरी वर्ड्स को सामने रखते हुए, उनके लाइन के रिदम को सामने रखते हुए और उस पोएम के थीम को सामने रखते हुए। So that is a synthesis level of thinking. अगर टीचर चाहेगा कि स्टूडेंट को एवेलुएशन के लेवल तक लेके जाया जाए कि वो इस पोएम में जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एवेलुएशन के लेवल तक लेके जाए, तो स्टूडेंट्स को किस किस्म का टास्क देगा? स्टूडेंट कमेंट on its quality and effectiveness as a piece of writing. So teacher what can do if he or she wants a mastery learning, तो वो एक ही कॉन्सेप्ट को नॉलेज से लेके एवेलुएशन तक लेके जा सकता है अपनी क्लासरूम में, और फिर वो इसकी इस तरीके से प्लानिंग कर सकता है कि वो स्टूडेंट को नॉलेज लेवल पे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन लेवल पे मल्टीपल टास्क उसके डेवलप कर सकता है। तो दैट इज़ अ वन वे कि स्टूडेंट्स के साथ इंस्ट्रक्शन में टीचर जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेकंड वन इज़ ऑब्वियस, दैट इज़ लेसन ऑब्जेक्टिव। टीचर हर रोज़ लेसन प्लान बनाते हैं और उसके अंदर वो अपने स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि जब वो ये 40-50 मिनट्स का लेसन पढ़ा लेंगे तो स्टूडेंट में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़, कौन सी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। So what they can do? Teachers can select action verb from Bloom taxonomy to use a variety of operational word in their objectives. So Bloom taxonomy actually give you an array of amount of so many action verb in every category. So हम हर दफ़ा describe और explain का verb use करने की जगह ब्लूम टेक्सोनॉमी के जिस लेवल को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कैपेबिलिटी डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें मल्टीपल एक्शन वर्ब देख सकते हैं और देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सो वी हैव अ ह्यूज चॉइस जब हमारे पास ब्लूम टेक्सोनॉमी के एक्शन वर्ब अवेलेबल होते हैं। So how Bloom's is actually helping our teachers in developing a lesson objective. The second one, using relevant Bloom's keywords when you are talking to student in a good way to revisit learning objective throughout the lesson. So it is good कि जो आपने lesson plan में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और उसमें ब्लूम्स के जो वर्ब इस्तेमाल किए हैं, वो वर्ब आप अपनी टीचिंग के दौरान इस्तेमाल करते रहें, डिस्कशन में, प्रेजेंटेशन में, क्वेश्चन आंसर में, लेक्चर में, ताकि स्टूडेंट्स और आप फोकस रहें कि हमारी आज की डिस्कशन का की पर्पस क्या था। इट इज़ टू रिव्यू, इट इज़ टू अंडरस्टैंड Bloom taxonomy's cognitive domain in instruction and in assessment. What else teacher can do? Teacher can develop a 3-part lessons. So teacher जब अपनी lesson planning करते हैं तो उसको 3 हिस्सों में divide कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले वो taxonomy wise divide करेंगे। Let's say कि पहली 2 taxonomy को इकट्ठा कर लेते हैं, knowledge and comprehension, then application and analysis, and then synthesis and evaluation. जब टीचर्स अपनी taxonomy को इकट्ठा कर लेंगे तो उनका नेक्स्ट स्टेज ये है कि वो लेसन को 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लेसन को वो नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे पढ़ाएंगे और उसका टेस्ट लेंगे कि स्टूडेंट से देखेंगे कि ये लेसन कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज लेवल पे
क्या स्टूडेंट्स को आ गया. So here is an example. They can give such of assessment to them. Write a summary of all the things you already know about this topic. So इस सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडेंट को नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन लेवल की थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी और वो इसका जवाब दे सकेंगे. अगले सेगमेंट एप्लीकेशन एनालिसिस लेवल पे जब आप पढ़ा लेंगे तो उसके बाद आप स्टूडेंट से इस किस्म का क्वेश्चन करेंगे. आस्क स्टूडेंट टू इंटरप्रेट अ सिचुएशन, टेक्स्ट और इवेंट यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज. देन आपका सिंथेसिस और एवेलुएशन लेवल का पार्ट आ गया लेसन प्लानिंग का, जिसमें आप स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे टू डेवलप अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव स्टडीड. नाउ बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू put a question in front of you. Just remember कि जब नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन लेवल के सवालात होते हैं तो वो सवालात क्लास में 10 मिनट में, 5 मिनट में या शायद 2-3 मिनट में उन सवालों के जवाब स्टूडेंट दे सकते हैं. लेकिन जब एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल के सवालात आते हैं तो स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उन सवालों के जवाब देने के लिए. जस्ट गिव इट अ लुक to the question of application and analysis. Ask a student to interpret a situation. इसके लिए उन्हें situation को पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे salient feature निकालने पड़ेंगे, फिर उसकी understanding develop करनी पड़ेगी, text और event using their existing knowledge. फिर जो कुछ उनके पास knowledge available है तो उसके ऊपर जो सवाल आते हैं फिर उस सवालात के जवाब देंगे और situation की interpretation करेंगे. So एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल के सवालात के जवाब स्टूडेंट 2 या 1 मिनट में नहीं दे सकते. दे रिक्वायर मोर टाइम फॉर इट. सो जब टीचर एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल का लेसन प्लान डेवलप करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो बच्चों को देगा उसमें बच्चों को उसे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा जहाँ पे उन सवालों के वो जवाब निकाल लें. अगला लेवल सिंथेसिस और एवेलुएशन लेवल का है. जब हम क्रिएटिव राइटिंग लिखवाते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप कोई क्रिएटिव राइटिंग 1 मिनट में लिख लें, 5 मिनट में लिख लें या 10 मिनट में लिख लें. समटाइम क्रिएटिव राइटिंग टेक्स द फुल क्लास, समटाइम इट टेक्स अ वीक, समटाइम इट टेक्स मंथ. सो जिस तरीके से हमारा कॉग्निटिव लेवल बढ़ता जा रहा है हमारे पास एक्टिविटीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ को करने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा. So where else can Bloom taxonomy used by the teachers? Teachers can develop their own task bank depending upon the different level of taxonomy. हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है और उसमें हमारे पास सबसे पहला जो लेवल है वो नॉलेज का लेवल है. टीचर्स क्या कर सकते हैं, पहले ही बच्चों के साथ जो वो टास्क करना चाहते हैं क्लासरूम में उसका टास्क बैंक बना सकते हैं. तो अगर वो कॉग्निटिव लेवल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरवीव करना चाहते हैं और बच्चों में नॉलेज लेवल की थिंकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो कैसे टास्क और एक्टिविटीज़ होंगी जो बच्चों को देंगे. लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर 1 or 2 एग्जांपल. लाइक अरेंज थिंग्स इन आइटम इन ऑर्डर, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस टॉपिक, राइट डाउन द डेफिनेशन, मैच द वर्ड्स, लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ द डायग्राम. अगर स्टूडेंट्स में वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल की थिंकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं और उसको असेस करना चाहते हैं तो उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज़ देंगे. सॉर्ट द आइडियाज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एक्सप्लेन योर आंसर टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस हैपेंड. डेफिनेटली इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा देन कि वो एक डायग्राम को लेबल कर रहे हैं या वर्ड को मैच कर रहे हैं या खाली एक डेफिनेशन लिख रहे हैं. अब हमारे पास अगला लेवल आ गया एप्लीकेशन का. अब एप्लीकेशन लेवल की जब हम थिंकिंग प्रोसेस स्टूडेंट में डेवलप करना चाहते हैं और उसे असेस करना चाहते हैं तो जो सवालात देते हैं वो डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज से डिफरेंट होंगे और उन सवालात के जवाब के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. Give it a look to the question, suggest a way to deal with the scenario, work with a partner to interpret the text, or take on the role of Henry VIII. What would he be thinking? So इसके लिए उन्हें हेनरी 8 को पढ़ना पड़ेगा, उसकी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और मूवमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और सिचुएशन को देखने के बाद बताना पड़ेगा कि हेनरी 8 ने ये डिसीजन जब लिया तो वो क्या सोच रहा था. डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें ज़्यादा रीडिंग रिक्वायर करेंगी और ज़्यादा टाइम रिक्वायर करेंगी. उसके बाद हमारे पास एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन लेवल की डोमेन्स आ जाती हैं और उससे मुतल्लिक हमारे पास टास्क बैंक आ जाते हैं. So I will going to just take one example from each box and let you know कि किस तरीके से हायर ऑर्डर थिंकिंग
कि क्वेश्चंस को हल करने के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और वो कैसे चैलेंजेस होते हैं। एनालिसिस में अगर हम क्वेश्चन देखें, द लास्ट वन, रिसर्च द टॉपिक विद अ पार्टनर। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप रिसर्च कर लोगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप लेबल कर रहे हो और एक डायग्राम को लेबल करने के लिए मे बी यू नीड जस्ट 3 or 4 minutes, लेकिन एक रिसर्च करने के लिए टॉपिक को यू डोंट नीड 3 minutes, you need maybe full month or full semester. Then अगर टीचर टास्क डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, उनकी सिंथेसिस कैपेबिलिटीज़ को, थिंकिंग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए और डेवलप करने के लिए, तो वो किस किस्म की टास्क देंगे। क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन क्या 5 मिनट में बन सकती है, क्या 10 मिनट में बन सकती है। क्रिएट अ कॉमिक स्क्रिप्ट। जब हम कॉमिक स्क्रिप्ट बनाते हैं तो मे बी हमें पहले स्टोरी सोचनी पड़ेगी, कैरेक्टर सोचने पड़ेंगे, उनके किस तरीके से उनको ड्रॉ करना है वो सोचना पड़ेगा, वो क्या डायलॉग बोलेंगे वो सोचना पड़ेगा, और उनको किस किस्म से ड्रेसिंग करानी है वो सोचना पड़ेगा, और हर कॉमिक स्क्रिप्ट में क्या सीन चल रहा है वो सोचना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस थिंग जस्ट इन अ क्लास और जस्ट मे बी इन 5-10 or half an hour. Then the second example is propose a counter argument or create a dramatic role play. Just think about it कि आपको dramatic role play develop करना है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, synthesis level की thinking skill चाहिए। Dramatic role play may be required 3, 4, 5 classes a week, 2 week, a month, or maybe the full semester. फिर हम आ जाते हैं टास्क बैंक पे जो evaluation level की होती है, and we will going to see how complex they can be. Number 1, what are the strengths and weaknesses of anything? What limitation does X have? So जब आप X की limitation find out करेंगे तो definitely आपको data चाहिए। आप उस data को analysis देखेंगे, उसके results देखेंगे, और फिर आप उसके evidences देखेंगे, और then आप फिर X की limitation find out कर सकते हैं। तो उस X की limitation find out करने के लिए student have to go through so many documents, read out, analyze it, give it a proper review, find out the evidence, and then they will go to find out the limitation. Again, it requires much more time than the tasks that are required for knowledge comprehension and application level cognitive activities. Now, here is the most interesting part is coming. As we all know, कि teaching learning process का assessment एक constituent part है. So जब हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं, हम लेसन प्लान बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट ने किस लेवल की कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल डेवलप होगी इस कंटेंट से रिलेटेड, और फिर हम असेस करके देखते हैं कि क्या वो स्किल्स डेवलप हुई, अगर हो गई तो किस लेवल तक डेवलप हुई और किस लेवल तक डेवलप नहीं हुई, उसका मीन क्या है, क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम अचीवमेंट हासिल कर ली और कितने बच्चे हैं जो एवरेज हैं, कितने बच्चे हैं जो बिलो एवरेज हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें असेसमेंट करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ टीचिंग। सो वी ऑल नो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल में 6 लेवल हैं, और हम यहाँ असेसमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू शो ओवर यू हियर, ये ब्लूम्स ने अपनी बुक में क्वेश्चन डेवलप किए हैं कि जब टीचर्स नॉलेज लेवल की थिंकिंग को असेस करने जाएंगे तो वो किस किस्म के क्वेश्चंस बना सकते हैं जिससे उनको पता चलेगा कि स्टूडेंट को इस कंटेंट या इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं। सो लेट्स गिव इट अ लुक टू द क्वेश्चन कि ब्लूम्स ने ये कैसे बनाया। द क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस अबाउट वेव मोशन डिफाइंस पीरियड? नंबर 1, the maximum distance a particle is displaced from its point of rest, the length of time required for a particle to make a complete vibration, number of complete vibrations per second, the time required to change of distance in a given direction, the time rate of change of distance in a given direction. So, question क्या है? Question ये है कि स्टूडेंट ने बताना है कि वेव मोशन में पीरियड कैसे डिफाइन होता है। अगर स्टूडेंट को वेव मोशन की डेफिनेशन पता है और उसमें पता है कि पीरियड कैसे डिफाइन होता है, दे विल गोइंग टू इजीली गेट द आंसर और वो राइट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सो दैट्स हाउ वी डेवलप अ नॉलेज लेवल क्वेश्चन
जिससे हमें पता चले कि स्टूडेंट की नॉलेज लेवल थिंकिंग इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है. नाउ दैट इज कॉम्प्रिहेंशन. सो कॉम्प्रहेंशन में हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आप बड़े आसानी से जवाब दे सकते हो. दैट इज a group of examiner is engaged in the production of a taxonomy of educational objectives. In ordinary English, what are these persons doing? Number one, evaluating the progress of education. Two, classifying teaching goals. Three, preparing curriculum. D, constructing learning exercises. So if you know कि टैक्सोनॉमीज किसको कहते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो देन यू विल इजीली गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ होते हैं और जब उनकी टैक्सोनॉमी डेवलप कर रहे होंगे तो एग्जामिनर क्या कर रहे होंगे. दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग slide and question for you. What you are observing definitely over here कि जैसे जैसे थिंकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और विद द एप्लीकेशन लेवल एंड ऑनवर्ड ना सिर्फ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बल्कि लंबा भी होता जा रहा है. सो स्टूडेंट विल गोइंग टू टेक मोर टाइम टू रीड इट आउट एंड देन गोइंग टू गेट अ आंसर ऑफ. सो ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको रीड आउट नहीं करूँगी, ये मैंने ब्लूम्स की बुक से लिया है और इट इज़ सच अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के दो लेवल हैं. सबसे ऊपर एक सिचुएशन दी गई है और हो सकता है ये सिचुएशन स्टूडेंट्स ने अपनी टेक्स्ट बुक पे ना पढ़ी हो, उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा हो इलेक्ट्रिसिटी का और वॉल्स का. अब उस कॉन्सेप्ट को ब्लूम्स ने एक सिचुएशन में डिफाइन किया है और फिर स्टूडेंट से उसके बारे में क्वेश्चन पूछे. सिचुएशन क्या है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक आयरन and that is of 110 volts has been used for some time and the plug contacts have become burned, thus introducing additional resistance. How will this affect the amount of heat which the iron produces? उसके बाद ब्लूम्स ने 3 ऑप्शन दिए. अब आप जो भी ऑप्शन चूज करते हो उसके बाद यू नीड टू गिव द सेकंड आंसर कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज की. चूज द रीजन you would use to explain or support your conclusion. तो यहाँ मल्टीपल रीजंस हैं. सो मल्टीपल रीजंस में से आपने एक रीजन चूज करना है कि आप क्यों ऊपर उस ऑप्शन को यूज कर रहे हो. दैट्स हाउ एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे रिक्वायर मोर टाइम फॉर रीडिंग एंड फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर ऑफ देम. Here is the story. The college committee in charge of social regulation was holding an open hearing on proposal that the rule on chaperoning co-educational outings. Co-educational outings क्या हो सकती हैं? लाइक कैंप फायर्स हो सकते हैं, ओवरनाइट हो सकती हैं और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो एक ओपन हियरिंग कर रहे हैं. उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को बुलाया है और स्टूडेंट्स को प्रपोजल दिया है. ओके कि ये जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं को-एजुकेशनल एक्टिविटीज दे शुड बी मोर स्ट्रिक्टली अप्लाइड. सो व्हाट हैपेंड, ये प्रपोजल देने के बाद एक स्टूडेंट ऑडियंस में से खड़ा हुआ, उसने एक स्पीच की और उसने जो स्पीच की उसका कंक्लूजन यहाँ पे ABCDEF की कैटेगरीज में लिखा हुआ है. जब आप ये पूरी कहानी पढ़ लेंगे और स्टूडेंट की स्पीच को भी पढ़ लेंगे देन यू नीड टू कम टू द क्वेश्चन. नाउ here the question begins. There is one statement in the student's argument for which reasons are offered, but for he does not offer a reason for any other statement. The statement, his main conclusion is then the options. So if you want to answer this question, you have to read out this story, and maybe after reading out the question, you reread out the story, so to get the स्टेटमेंट जिसके लिए बाकी आर्गूमेंट तो दी गई हैं पर वो स्टेटमेंट कोई दूसरी स्टेटमेंट की आर्गूमेंट नहीं दी थी. इट इज़ सच अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट रिक्वायर्स मोर थिंकिंग प्रोसेस, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस. डेफिनेटली टू आंसर दिस क्वेश्चन इट रिक्वायर्स मोर टाइम. इट इज़ नॉट going to be end over here. What we need to understand it कि जब हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस के लिए हम असेसमेंट डेवलप करते हैं एज अ टीचर और हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफर करते हैं बच्चों को जिसमें हम चाहते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस सीखें, एनालिसिस सीखें, सिंथेसिस की थिंकिंग स्किल डेवलप हो, तो ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना भी मुश्किल है
और ऐसी असेसमेंट को डेवलप करना भी बहुत मुश्किल काम है. इट इज़ नॉट अ easy task to develop these kind of questions, and it is not an easy task to actually solve these questions. So टीचर के लिए ऐसे क्वेश्चन भी बनाना itself it is a big challenge. But anyway, they are interesting stuff. और यही हमारी हायर एजुकेशन का मेन एजेंडा है कि हम स्टूडेंट को ऐसी असेसमेंट दें कि वो चेक कर सकें तो उनका एनालिसिस लेवल की थिंकिंग स्किल्स कैसी है. द रेस्ट थिंकिंग स्किल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए उनकी एग्जांपल. इट इज़ योर टास्क गो एंड फाइंड आउट कि वो थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे और टीचर्स उन्हें कैसे मुहैया कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.